Assalamu alaikum. There are some things which are pending for both the division. There are two topics I think that is going to be taken by me. One is dynamic programming. Another part is second part of LPP, which is duality and theorems related to dual. Okay, so I'll be taking those concepts, and whatever else is pending, like transportation is pending for BME one, I'll take it afterwards. Okay, don't worry. So in that way, we'll be able to complete the syllabus. The most toughest part for this this LPP or this operation research is actually dual concept and dynamic programming concept. I would not say it is tough, but I will recommend and I'll say that it is a little bit on a thinking side. Like you need to think a lot if you need to solve dual and dynamic programming, and you need to be very good in maths, and you need to be very good in like observing the things. That is very important. ओके तो आज जो लेक्चर है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम ड्यूअल स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में आई थॉट लाइक आई कंप्लीट ऑल द पार्ट ऑफ एलपीपी इन वन लेक्चर और इन वन गो but then I realized if I try to do that way what will become is like it will become very difficult for you to understand. This is because basic of dual is very important for you to understand the next part of LPP. And trust me, this dual concept is very, very important if you want to actually solve the linear programming problem in real world. I'll tell you how. Okay, and the second part that I am going to take is dynamic programming. Dynamic programming is more like non-linear programming. Linear programming we know that x plus y is equal to 3. Means both the equations are having the highest degree of variable as 1. But if it is x square, what are you going to do? How are you going to solve real life equations which are actually quadratic in nature? Okay, so which are having second power or third power, how are you going to solve? That is actually solved by dynamic programming. Okay, so we will consider all those things also afterwards, but today what I'll do is into our session I'll actually try to take you to the concept of dual, and I would like to solve a dual LPP. Okay, and after that, see, I'm going to tell you what are the actual syllabus for this. What is the syllabus that is pending from our part? First is what do you mean by dual? Okay, how do you convert a given LPP into a dual? Second thing, and third part that is there for us is that we are going to do today is we are going to solve dual LPP, not a normal LPP. This is a dual LPP. Matlab the thing that you have converted from a normal LPP to dual, now you need to solve it. Now you need to solve the dual LPP and interpret its result. What is the advantage of solving an LPP by dual method? So you need to interpret the result also accordingly. Okay, this is the part that we are going to cover. In the next segment or in the next session, we will cover theorems of dual. Okay, these theorems of dual are very, very, very important, and this will help you simplify the dual LPP or to simplify the things that we are going to do today. जो भी आज हम कर रहे हैं ना वो थोड़ा टिपिकली अलग रहेगा, और जब थियरम्स अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी. हम यही करने वाले हैं आज. ओके, इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Has everyone joined? Just let me see. Let me see how many of the participants. 20 are there. ठीक है, I'll start with dual. I think आपने ये dual मैथ्स में पढ़ा है. मैथ्स 4 में याद है किसी को? Yes, sir. थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक्चुअली में इसको. Maximize, minimize. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब थोड़ा सा हट के आपने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा था, अब इसको मैं थोड़ा सा ना स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ओआर. तो ड्यूल में होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो भी बता देता हूँ. ड्यूल में क्या करते हैं, जो हमारा एलपीपी रहता है ना उसको एक्चुअल में ना हम बोलेंगे रिवर्स करते हैं. एक तरीके से पूरा उसका प्रोसेस रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूँ एलपीपी को रिवर्स करते हैं तो एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूँ. जो हमारा मेन एलपीपी रहता है ना उसको हम बोलते हैं प्राइमल, समथिंग विच इज गिवन प्राइमरली. ओके, तो रादर देन सेइंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको हम एलपीपी बोलते थे, अब हम इसको बोलेंगे प्राइमल. ठीक है,
और हमको ये प्राइमल को किस में कन्वर्ट करना है, हमको ये प्राइमल को ड्यूअल में कन्वर्ट करना है। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स। ओके, अब इसको जब हमको कन्वर्ट करना है ये क्वेश्चन को, तो सबसे पहले चीज ये देखनी है कि दिया क्या हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल टू द प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, अब जब हमको कंस्ट्रक्ट करना है ड्यूअल टू द प्राइमल प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो हमको ये प्राइमल है हमारा, ठीक है। तो प्राइमल में अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल में वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो जाता है मिनिमाइज, पहली चीज, ठीक है, इतना याद रखना। ओके, सेकेंड चीज बताता हूं, अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर देता हूं आपके लिए, देखते हैं। अब पहली चीज क्या बताया, अगर हमारा कोई क्वेश्चन मैक्सिमाइज है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या करना है वो बता देता हूँ, गिनना है कितने कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। आपको ये पता है z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशंस दी रहती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस रहती है वो हमारी रहती है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, करेक्ट। और उसके बाद जो वेर करके दिया रहता है, जो भी वेर करके वेरिएबल्स के बारे में दिया है वो हमारा क्या रहता है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये चीजें हमको दी रहती है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको हर चीज को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे कितने कंस्ट्रेंट इक्वेशंस है वो देखना है। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कंस्ट्रेंट इक्वेशंस 4 है। तो हर एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन के साथ एक नया वेरिएबल अटैच करना, ओके। हर एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन के साथ एक नया वेरिएबल अटैच कर दो, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक नए वेरिएबल से नाम दूंगा जो है y1। दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को मैंने सपोज करो नाम दे दिया y2 के साथ, तीसरे को मैंने अटैच कर दिया y3, और चौथी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, y4। ओके, अब जब हमने इसको नाम दे दिया y1 y2 y3 y4, तो अब मैं बताता हूँ इसमें ड्यूअल में होता क्या है, ड्यूअल बनता कैसे, ठीक है। जब हमको ड्यूअल बनाना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया था, अगर कोई क्वेश्चन मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल में वो हो जाता है मिनिमाइज। क्या हो जाता है, मिनिमाइज। अब मिनिमाइज। जब यहाँ पे z में लिखा है, किस में लिखा है, z में, तो ड्यूअल में बेसिकली मतलब जो कन्वेंशन यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कन्वेंशन रहता है w, ठीक है। तो w लिख देने का। नेक्स्ट चीज क्या करने का, कंस्ट्रेंट इक्वेशन के राइट साइड में जो भी वैल्यूज है, देखो पहली वैल्यू कितनी है 50, दूसरी वैल्यू है 35, तीसरी है 10 और चौथी है 20, ठीक है। तो ये हमारा ये जो भी कंस्ट्रेंट के राइट साइड में जो भी वैल्यूज है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है ड्यूअल में। कैसे बन जाता है, 50 को मल्टीप्लाई करने का y1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू y1, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, दूसरी कंस्ट्रेंट के 35, तो ये हो जाएगा 35 इंटू y2, प्लस करते जाओ। नेक्स्ट क्या है, 10 है तो 10 इंटू y3। y3। नेक्स्ट में क्या है 20, तो 20 इंटू y4। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं सम कंप्लीट होते ही बताता हूँ, ऐसा क्यों करना रहता है, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया, हमारा मैक्सिमाइज के जगह हमारा एक फंक्शन आ गया ड्यूअल में, जो कि क्या है, मिनिमाइज w इज इक्वल टू 50y1 प्लस 35y2 प्लस 10y3 प्लस 20y4। ओके, इज एवरीवन देयर विथ मी ऑन द सेम पेज? यस सर। नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, कि अगर हमारे पास y1 y2 y3 y4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y1 y2 y3 y4 है, तो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी, इसके लिए भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाएंगे ना ड्यूअल के लिए, करेक्ट। तो यस जो सर। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी उसमें कौन से वेरिएबल रहने चाहिए, x रहने चाहिए कि y रहने चाहिए? x। वाई x तो वाई प्राइमल के लिए था ना, देखिए ना x किसके लिए था, प्राइमल के लिए। अब मैंने ड्यूअल के लिए एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लिया y1 y2 y3 y4, करेक्ट। तो अब अगर मुझे पता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल्स है वो y के टर्म्स में है, तो जो भी मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी, जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस बनती है, उसके अंदर जो वेरिएबल रहने चाहिए वो किसको क्या डिनोट करने चाहिए, y1 y2 y3 y4, करेक्ट। यस सर। अब यस देखो सर y1 y2 y3 y4 कैसे मिलता है, एकदम सिंपल तरीके से,
ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस, मैं बताता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पॉज लेना, मैं सिग्निफिकेंस बता दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, x1 देखो, x1 x2 x1 x1 x1, लास्ट वाली इक्वेशन में x1 है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो भी वे कांस्टेंट है, दिख रहा है कोएफिशिएंट्स x1 के, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 5 और चौथे में 0, 0x1, करेक्ट। तो चौथे में 0, इसको मल्टीप्लाई करने का, ये कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का y1 के साथ, किसके साथ, y1 के साथ। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू y1, मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 इंटू y1, दूसरा देखो 3 था, 3 इंटू y2, नेक्स्ट में 5 है, तो 5 इंटू y3, लास्ट में 0 है, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू y4। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहेगी, लिख दिया ना। अब तुमको पता है कंस्टेंट में एक LHS होता है और एक RHS होता है। अब RHS किसके इक्वल रहेगा, x1 की वैल्यू z में देखो कितनी है, x1 की वैल्यू z में क्या कोएफिशिएंट है, 3 होगा, कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि लेस देन इक्वल टू आएगा कि इक्वल टू आएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ तुमको। यहाँ पे हम कंस्टेंट लिखते हैं ना, कंस्टेंट इक्वेशन में, वो मैं बताता हूँ ना, वो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, वो रोकते हैं, 2 मिनट के लिए रोकते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहाँ पे कुछ तो आएगा, वो क्या आएगा अपन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब दूसरा देखते हैं, पहला वेरिएबल हमने यूज कर लिया x1 और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो y1 y2 y3 y4 के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। इज इट ओके? यस सर, यस सर। प्राइमल में दूसरा वेरिएबल देखो क्या है, x2 है। तो देखो x2, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा वेरिएबल देखते हैं, देखो x2, सबका कांस्टेंट देखो क्या है, पहले में क्या है 6, दूसरे में क्या है 2, तीसरे में है -3 और नेक्स्ट में क्या है 1। अब देखो 6 इंटू पहला वेरिएबल क्या है हमारे पास, ड्यूअल में वेरिएबल क्या है y1, तो आ जाएगा 6 इंटू y1। नेक्स्ट में देखो 2 के साथ क्या है y2, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन का इशू आ रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट में आ जाएगा 2 इंटू y2, नेक्स्ट आ जाएगा -3 इंटू -3y3, वेरी नाइस। और लास्ट में देखो वेरिएबल के साथ Plus- कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस आ y4, जाएगा +1 इंटू y4। ठीक है, और इसका वैल्यू x2 में कितना है, z में 5, तो यहाँ पर कुछ तो आ जाएगा 5, और इसके साथ भी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू, हम देखते हैं। अब देखो, ठीक है, तो अब देखो हमने x1 को यूज कर दिया, x2 को यूज कर दिया, करेक्ट कर दिया ना यूज। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. चीज की तरफ। देखो अब मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्राइमल में कितने कंस्ट्रेंट्स थे बताओ? 4, करेक्ट था। प्राइमल sir. में Yes, sir. कंस्ट्रेंट्स कितने थे? 4 4 कंस्ट्रेंट्स। 4 sir. ओके, वेरी नाइस। अब मुझे बताना प्राइमल में वेरिएबल्स कितने थे? वेरिएबल्स 2 2 वेरिएबल्स, sir. वेरी नाइस, 2 वेरिएबल्स, करेक्ट। अब ध्यान देते हैं ड्यूअल के बारे में, क्वेश्चन कर रहा हूं, ज्यादा सोचो मत। ड्यूअल में कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? 2 2 है, 2 sir. वेरी नाइस, तो 2 कंस्ट्रेंट हो गए, करेक्ट। अब वेरिएबल कितने ड्यूअल में बताओ मुझे? 4 4 है, है। वेरी नाइस। 4 sir. तो ड्यूअल में 4 सॉरी बराबर लिखा है मैंने, हाँ 4 वेरिएबल्स हैं, यस और नो? यस। Yes sir. अब ध्यान देना, इसका मतलब ये है, सिर्फ सिंपल सी चीज Reverse देखना होगा। कि जो कंस्ट्रेंट है वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रहेंगे प्राइमल में उतने नंबर ऑफ वेरिएबल बन जाएंगे ड्यूअल में। क्योंकि आप देखिए, आपने हर एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन के साथ एक वेरिएबल अटैच किया या नहीं? यस सर। एक कंस्टेंट इक्वेशन के साथ y1, दूसरे के साथ y2, तीसरे के साथ y3, चौथे के साथ y4, तो जितने कंस्ट्रेंट्स रहेंगे प्राइमल में उतने वेरिएबल्स हो जाएंगे ड्यूअल में, यस सर। और जितने वेरिएबल्स रहेंगे ड्यूअल में उतने कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे प्राइमल में। क्योंकि देखो वेरिएबल्स कितने हैं, x1 और x2, और x1 और x2 की हेल्प से आपने ये इक्वेशंस बनाई या नहीं? यस सर। करेक्ट।
Is everyone there with me? Yes, sir. वेरी Yes, नाइस। sir. Yes, sir. एकदम सिंपल सी Yes, चीज sir. ये है, एकदम सिंपल सी चीज ये है कि जितने कंस्ट्रेंट है उतने वेरिएबल बन जाएंगे ड्यूअल में। तो सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से देखने का, कंस्ट्रेंट कितने हैं भाई? ओके 4 है, तो मुझे पता चल गया कंस्ट्रेंट 4 है, मतलब मेरे ड्यूअल में वेरिएबल 4 होने वाले। ठीक है, और मुझे पता ड्यूअल में चल दो गया है अच्छा बेटा। वेरिएबल कितने हैं? 2 है, तो कंस्ट्रेंट कितने होने वाले हैं ड्यूअल में? दो। 2 होने वाले हैं। इतना पहले दो। क्लिक हो जाना चाहिए। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ, देखिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करता हूँ, बहुत गंदा हो गया हो बट चलेगा, दिख रहा है तो चलेगा। देखो ना, इसी में देखो थोड़ा सा। ठीक है, एक लास्ट चीज मुझे बतानी है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप मैक्सिमाइज में है, क्वेश्चन किस में है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में है, तो ड्यूअल बनाने से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने, ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं थी पर जनरली एप्लीकेबल रहेगी। अगर मैक्सिमाइज है, ठीक है, हम एलपीपी में ऐसा नहीं देखते थे बट इसमें देखना जरूरी है। कभी भी आपको ड्यूअल कन्वर्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को उसका ड्यूअल में कन्वर्ट करना है, और अगर मैक्सिमाइज है तो जितने भी कंस्ट्रेंट है सब लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सब लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। अगर नहीं है, सपोज करो एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई एक कंस्ट्रेंट, 4 कंस्ट्रेंट इक्वेशंस है, उसमें से अगर कोई एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप उसको कन्वर्ट करो लेस देन इक्वल टू में, तभी प्रोसीड करना ड्यूअल के साथ। हमेशा याद रखना। इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर सर। वेरी नाइस। अब ध्यान Yes, देते sir. हैं, ध्यान देते हैं, यही क्वेश्चन कहाँ है, वही क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूँ। ये देखो सर अपने क्वेश्चन में एप्लीकेबल क्यों नहीं है? देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, देखो ना, एक में इसीलिए मैं अभी ला तो रहा हूँ। मैक्सिमाइज का ही क्वेश्चन है ना सर। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, एक मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज Yes, में sir. सब लेस देन इक्वल टू चाहिए, देखो पहले से लेस देन इक्वल टू है ना, यस सर। तो काय को चेंज करोगे? मैं क्या बोल Yes, रहा हूं, अगर सपोज करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो आप ड्यूअल प्रोसीड ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अगर कंडीशन मेरी एलपीपी की मैक्सिमाइज है और अगर मुझे बोला है इसका ड्यूअल बनाओ, तो सबसे पहले देखना सब के सब लेस देन इक्वल टू है या नहीं। ओके, यस सर। अगर लेस देन इक्वल टू है तो डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, अगर नहीं है तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू है या कोई और कंस्ट्रेंट टाइप है, जैसे कि इक्वल टू कंस्ट्रेंट टाइप भी होता है, वो भी देख लेंगे। बट कभी भी याद रखना मैक्सिमाइज है तो सबके सब किस में रहना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। अगर हमारा एलपीपी मिनिमाइज है तो किस में रहना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी नाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर कोई भी लेस देन इक्वल टू है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। सिंपल, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन को फिर से देखते हैं यहीं पर। अब मैं बताता हूं, ध्यान दो, ध्यान, एकदम सिंपल सा खत्म होने वाला है क्वेश्चन। अब देखो हमारा ड्यूअल कौन सा है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमाइज। मिनिमाइज। हमने कौन सी चीज का केयर किया कि जब मैक्सिमाइज था तो सब लेस देन था या नहीं? हमने केयर किया ना इसका, Yes, sir. कि जब मैक्सिमाइज था तो सब Yes, sir. लेस देन इक्वल टू है, तो जब मिनिमाइज रहेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने पहले ही केयर ले ली है उसकी। ओके, if you are taking proper care Okay, sir. that maximize are having all the constraint as less than equal to, then when you are changing the dual to minimize, which is going to be minimized, then you can directly put greater than equal to without worrying for anything else. Simple. Okay, Okay, sir. very nice. Now the next thing that I want to say is, ध्यान देना अच्छे से, variables should always be non negative। बराबर, variables हमेशा क्या रहना चाहिए? नॉन नेगेटिव रहने चाहिए। तो कितने वेरिएबल्स हमारे पास? y1, y2, y3, y4, ये सब के सब वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। ओके ओके, यस Yes. सर। वेरी सर नाइस। y3 नेगेटिव में है ना? y3 कहाँ नेगेटिव है बेटा? y3 नहीं है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है यहाँ। वेरिएबल कैन नेवर बी नेगेटिव। Okay. ओके, इज इट ओके? ओके सर। अब एक छोटी सी चीज काम करते हैं, ये Yes, sir. हमारे पास ओपन होने दो इसको।
तो सर ऐसे तो सब वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव ही सबर रहेंगे ना, सबर सबर उसके सबर सबर साथ जो कांस्टेंट है उसको ही नेगेटिव कंसीडर करेंगे ना। कांस्टेंट ही हमेशा नेगेटिव होता है, वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर वेरिएबल नेगेटिव, वेरिएबल क्या इंडिकेट करते हैं? रिसोर्सेज इंडिकेट करते हैं, बराबर। वेरिएबल रिसोर्सेज इंडिकेट करते हैं ना, तो रिसोर्सेज कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? यस सर। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक छोटा सा अपने पास डिफरेंस बिटवीन है। देखो कुछ चीजें हमने क्लियर कर लिए। क्या क्लियर कर लिए? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम प्राइमल में, मिनिमाइजेशन हो जाएगा ड्यूअल में। कंफर्म? यस और नो? अब Yes, देखो sir. कंस्ट्रेंट, देखो Yes. लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट किस में हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू Greater than. कंस्ट्रेंट। और क्यों लेस देन लिखा है? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन लिखा है ना, Yes, sir. तो मैक्सिमाइजेशन है तो कंस्ट्रेंट कैसा रहना चाहिए? लेस देन। Less than और or मिनिमाइजेशन में वही कंस्ट्रेंट कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन। greater than. अब ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट याद करो। ऑब्जेक्टिव, अच्छा ये मैंने बताया ही नहीं, सुन एक सेकेंड, बताया नहीं बताया। आरएचएस जो था हमारा, आरएचएस जो था कंस्ट्रेंट का, याद है वो क्या बन गया था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Objective function. बताया मैंने, ये बताया, सॉरी। आरएचएस हमारा बन गया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था याद है वो क्या बन रहा था? Yes, sir. The constant of constraint. इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Constant of constraint, sir. इज एवरीवन गेटिंग? नहीं सर। अरे यार Yes. अभी तो किया था, देखो ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू वो 3x1। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? हाँ सर, हाँ सर, बराबर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है हमारा, आरएचएस जो रहता है ना, किसके इक्वल रहता है? आरएचएस याद है? देखो हाँ तीन सर, इक्वेशन समझे। थी, ग्रेटर देन, Constraint ग्रेटर equation देन, थे। ग्रेटर देन, उसके जो वैल्यू थी 2, 3, 4, बराबर। याद है? अरे यार अभी तो लिखा था, एक सेकंड फिर से बताता हूँ, चाहिए तो। ये देखो अभी तो किया हमने, ये देखो कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, फिर से कोई टेंशन नहीं है, टाइम लगेगा। ये कहाँ से आ गया? अच्छा एनोटेट कर दिया है मैंने स्क्रीन को, एनोटेट को रब कर सकता हूँ क्या? हाँ क्लियर कर सकता हूँ। अब ध्यान दो, You are using the computer only. कहाँ गया यार वो? हाँ, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन Yes, दिख रहा sir. है? ये देखो, ये y1, y2, y3, y4 बराबर। तो इसका Yes, जो sir. RHS है ना, RHS वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है या नहीं? Yes, sir. बनता है. तो वही तो बताया मैंने, देखो ना, इसका जो RHS है, ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाता है? RHS। RHS. और RHS क्या बन जाता है कंस्ट्रेंट का? कंस्ट्रेंट का RHS क्या बन रहा है? कंस्ट्रेंट का RHS क्या बन रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Objective और function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन रहा है? RHS का, इसका कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का RHS बराबर था। Yes, sir. वेरी नाइस, थैंक यू। इज एवरीवन गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। यस सर, अब जस्ट गिव समझाओ। मी अ सेक। वेरी नाइस, वो अच्छी बात है, वो वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो समझ लेना चाहिए। अब क्या बचा? एक छोटा सा और चीज अगर कुछ हुई है तो वो भी देख लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बंद होना है। ध्यान दो, देखो ये हो गया, जितने वेरिएबल्स हैं ये भी बताया था, उतने, देखो जितने वेरिएबल है उतने कंस्ट्रेंट आया ना, और जितने Yes, sir. कंस्ट्रेंट है उतने वेरिएबल। Variable. उसके बाद लेस देन इक्वल टू मैक्सिमाइज है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी प्रोसीड करेंगे तो मैक्सिमाइज में सब के सब लेस देन इक्वल टू में रहना चाहिए।
फिर ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये दोनों पॉइंट्स को बाद में कैटर करते हैं। काफी सिंपल पॉइंट्स है, टेंशन मत लो। ओके, ओके सर। अब ध्यान देते हैं, फिर से एक चीज पर ध्यान देते हैं। वही क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, कहाँ गया। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर तो मेरे हिसाब से इजी था, फिर से एक बार देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना जल्दी जल्दी ना इसका मैं तुम्हारे ही सामने ये लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। देखो अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैक्सिमाइज का हो गया मिनिमाइज, Z का हो गया W, और राइट साइड में क्या क्या है, हाँ 50 है तो आ जाएगा 50y1 प्लस 35y2 35y2 plus 10y3 plus 20y4. वेरी नाइस। सब्जेक्ट टू 2y1 प्लस 3y2 करेक्ट, प्लस 5y3 plus प्लस 5y3 y4 करेक्ट। plus y4. हाँ, अब ये बताया था मिनिमाइज है तो Equal to डायरेक्टली क्या 3. हो जाएगा, ग्रेटर No देन sir, इक्वल equal टू to नहीं, smaller than equal to. ग्रेटर देन ना, मिनिमाइज है, हाँ, मिनिमाइज है। ये लेस है तो यहाँ ग्रेटर आएगा, बताया तो था। फिर उसके बाद Yes, sir. नेक्स्ट कंडीशन 6y1 प्लस 2y2 माइनस minus 3y3 3y3 प्लस 3y4. 0y4, सॉरी यहाँ नहीं था, ये 0 था यहाँ, देखो ना गलती से लिख दिया मैंने, करेक्ट। यस सर। x2 है वो, Yes तो sir. प्लस y4 plus y4. ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5। और Five. वेरिएबल Five. है y1 y2 y3 y4 Y3, ग्रेटर Y4. देन इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, अब ये समझो मेरा प्राइमल है, कहानी चेंज करते हैं। गाई मत करना, इस तरफ मत देखना, चाहिए मैं ये क्वेश्चन डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और हम क्या Okay, करेंगे, अब ये मेरा प्राइमल है, अब हम इसको क्या करेंगे, ड्यूअल में कन्वर्ट Dual. करेंगे सिंपल। चल, अब प्राइमल को हमको कन्वर्ट करना फिर ये है वापस क्वेश्चन dual। ही बन जाएगा ना। हाँ तो वही ना करते ना, बिना देखे करते ना, वही मैं बोल रहा ना। अब देखो कितनी इक्वेशंस है, 2, तो सबको वेरिएबल देते हैं। इसको दे दिया मैंने x1, इसको दे दिया मैंने x2, x2। ठीक है। अब ध्यान देते हैं, इसका जो RHS है वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, तो W के जगह क्या आ जाएगा। सबसे पहली चीज मिनिमाइज है तो सबके सब क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले सर मैक्सिमाइज लिखेंगे। हाँ वेरी नाइस, इसका लिखेंगे मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज फिर W की Z जगह is लिख equal दिया Z 3x1 प्लस is equal 5x2, करेक्ट। 3 into x1 प्लस Yes, sir. 5 into x2। सब्जेक्ट टू क्या करेंगे, सेम। अब देखो y1 करेक्ट, तो क्या लिखेंगे 2x1 प्लस 1 6 plus 6x2 वेरी नाइस। अब मैक्सिमाइज है तो लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू व्हाट 50। 50 सर। नेक्स्ट इक्वेशन 3x1 प्लस 2x2 Plus लेस देन 2x2. इक्वल टू 35। 35 वेरी नाइस। नेक्स्ट 5x 5x1 माइनस minus 3x लेस देन इक्वल टू 10। less than equal to 10 वेरी नाइस। Equal नेक्स्ट तो to 0x1 1x2 less than equal to 20। x2 all variables should be greater less than than equal equal to to 0। 20. Simple? Is it okay? सर x3 x4 नहीं आएगा ना। हाँ x3 x3 x4 नहीं आएगा, सो सॉरी नहीं आएगा, दो ही वेरिएबल है, सॉरी। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं, अब मैं बताता हूँ ये करना क्यों, मेन चीज है ये करना ही क्यों, इससे क्या फायदा है, ये क्यों किया जाता है और उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है, पर एक्चुअल में हमारे सिलेबस में नहीं है सब चीज उस लेवल पे। अब ध्यान दो, अगर हम इसको LPP से सॉल्व करें, किससे सॉल्व कर रहे हैं, LPP। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो सकता है? नहीं, बहुत बड़ा है सर। सब लोग से पूछ रहा हूँ, अब्दुल्ला पटेल यस कर सर। सकते हैं हो सर। सकता है या वेरिएबल नहीं? 2 है, हो सकता है 2 वेरिएबल।
ये ग्राफिकल से दो- इजी है कि एलपीपी से इजी है, वो बताओ। एलपीपी से ग्राफ- इजी है सर। ग्राफिकल से ग्राफिकल इजी से है, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इजी है। ग्राफिकल से ग्राफिकल इजी से है। होगा सर सॉल्व, लेकिन लंबा हो जाएगा थोड़ा। अरे उल्टा, हाँ। ग्राफिकल से जल्दी कैसे होगा, सर? एलपीपी से लंबा हो जाएगा। बताऊं कैसे? सुनो, सुन रहे हो ना? सुन हाँ रहे सर। हो? यस सर। अपने पास Yes, 2 yes, sir. डायमेंशन होते हैं एक्सिस पे। कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन। हाँ। वेरिएबल कितने हैं? 2। तो जब भी 2 वेरिएबल रहता है तो हमेशा याद रखना ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितनी इक्वेशंस है? 1 2 3 4, आसानी से प्लॉट हो जाएगी इसमें। करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब ध्यान दो, अगर तुम इसको ग्राफिकल की जगह किससे करते, अगर तुम इसको ग्राफिकल की जगह एलपीपी से करते तो एक स्लैक इसमें आता, एक स्लैक इसमें आता, एक स्लैक इसमें आता और एक स्लैक इसमें आता, और लकीली इसमें कोई भी ग्रेटर नहीं है, नहीं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी घुस जाता, बराबर ना? आया ना? तो Yes, अगर sir. 4 स्लैक है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 का बन रहा है या नहीं? अगर 4 इक्वेशन है, कितनी इक्वेशंस है? 1 2 3 4, करेक्ट? तो अगर 4 इक्वेशन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बनेगा? 4x4। यस Correct? सर। Is everyone there? यस Am I सर। audible? यस सर। Yeah. Now listen. कभी भी 4x4 मतलब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पहले आइट्रेशन में S1 S2 S3 S4 है तो लास्ट तक 4 वेरिएबल चलेंगे तो ये आइट्रेशन बड़ा हो जाएगा या नहीं? आइट्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा ना? हाँ सर। अब देखो इसका कमाल क्या हुआ कि अगर सपोज करो ज्यादा वेरिएबल होते हैं या कम वेरिएबल रहते हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है। सपोज करो नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 है। कितने हैं? 100 है। सुनो जब अच्छे इससे से। इक्वेशन कम हो जाती है तो बाद में प्लॉटिंग में इजी होता है ना। अरे प्लॉटिंग कैसे? सुनो ना, सुनो, Solve पहले करने से। कंप्लीट करने दो मुझे, कंप्लीट करने दो, सिर्फ कंप्लीट करने दो फिर बोलो। सुनो, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 हैं, जितने भी लोग हैं वो हैं भी कि नहीं वो मुझे बताओ। 100 तो बाद में, 29 लोग जो है वो सुन रहे हैं ना? यस सर। अब बस सुनो अच्छे से सुनो। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 है और 2 ही वेरिएबल है तो भी ग्राफिकल से काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्रीड? ग्राफिकल में प्लॉट तो हो जाएगा, 2 वेरिएबल है पर नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 है। करेक्ट ना? यस और नो? अब अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस 100 है तो अगर 100 इक्वेशंस है तो 100 आएगा कि नहीं? पहले आइट्रेशन में वेरिएबल्स कितने आएंगे? 1 2 3 4, 100 आएंगे या नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने? 100। तो जब आप पहला आइट्रेशन करेंगे अपना एलपीपी में जब अपना फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे या नहीं? यस और नो? यस सर। अब ध्यान दो, ये जब 100 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो अगर मैं इसका ड्यूल बनाता हूं तो 2 इक्वेशन हो जाती है या नहीं? इक्वेशन कितनी हो जाती है? 2। करेक्ट ना? इक्वेशन 100 है, वेरिएबल 2 है, तो मैंने क्या बताया था? ये देखो डिफरेंस बिटवीन क्या था? वेरिएबल जितने हैं उतने कंस्ट्रेंट हो जाते, जितने कंस्ट्रेंट है उतने क्या हो जाते? वेरिएबल। तो फायदा क्या हो गया? 100 इक्वेशंस 2 इक्वेशन बन गई और 2 वेरिएबल 100 ये बन गए। समझ रहे हो? वेरिएबल्स बढ़ गए क्योंकि हर एक इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 2 अप टू 100 है तो सबके साथ हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं कि नहीं? y1 y2 y3। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाए और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए तो अपना एलपीपी छोटा हो जाएगा कि नहीं? एलपीपी 100 की जगह 2 इक्वेशन रहेगी ना? कम हो जाएंगे। वेरी नाइस, आइट्रेशन कम हो जाएंगे हाँ, क्योंकि iteration कम मुझे हो जाएगा। 2 ही इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अब इसका Yes, sir. इंपॉर्टेंस बताता हूँ, सिग्निफिकेंस। प्लीज ध्यान देना, सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा करने से क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप ड्यूल एलपीपी को अपने सॉल्व करेंगे तो भी आपको ड्यूल एलपीपी के तो मैक्सिमाइजेशन चाहिए नहीं। आपको किसका मैक्सिमाइजेशन चाहिए? अपने प्राइमल का मैक्सिमाइजेशन चाहिए या नहीं?
करेक्ट? Yes, sir. आप Yes, sir. ड्यूअल Yes, sir. एलपीपी को सॉल्व करो, वो आपको प्राइमल का मतलब मेन जो एलपीपी है उसका मैक्सिमाइजेशन देगा, 100% देगा। ओके, उसके अंदर सब मिल जाता, वही सिंप्लेक्स टेबल में सब मिल जाता। प्राइमल के टेबल में ड्यूअल एलपीपी का आंसर मिल जाता, ड्यूअल एलपीपी के टेबल में प्राइमल का भी आंसर मिल जाता, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके लिए ड्यूअल यूज होता है। ओके Okay, sir. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब चीजें थोड़ी सी पेचीदा और थोड़ी सी अलग होने जा रही पर इजी है, आप सिर्फ देखते रहो। मैं हेल्प करता हूं आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा, उससे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, ध्यान देते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये मैक्सिमाइज है तो सब कंडीशन, अच्छा वही क्वेश्चन वापस ले लिया क्या मैंने? सॉरी, Same है हाँ sir. सर वही है। हाँ, मैं Same change कर रहा- same question है sir. वही चेंज है कर रहा सर, बाबा, वही। भूल से हो गया। है क्वेश्चन, डरो मत। रियल 3 ओके, नाउ लिसन, क्वेश्चन क्या है? मिनिमाइज है तो सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है या नहीं? Yes. हाँ। Yes, sir. को अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को बाहर निकालते हैं अपन। देखो इक्वेशन क्या है, 7x1। आगे बढ़ने से पहले ही देख लेने का, लेस देन इक्वल टू देखो एक ही में है और सब ग्रेटर देन है, तो वो इक्वेशन उठा लेने का। 7x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, ना अब अगर मुझे इसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 7x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। ओके, बस इतना चेंज कर दिया, खत्म। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो लेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर। Greater. अब ध्यान दो, हाँ बोलो, किसी को डाउट है? No sir. ओके, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। अब ये इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसके जगह हम नई इक्वेशन लिख देते। क्या इक्वेशन है? माइनस 7x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, Minus 10. Understood. सो सॉरी, मेरे को एक्चुअल में ये डैश निकाल देता तो अच्छा रहता। रुको, हाँ, अब लिखता हूँ, is greater than equal to minus 10। ओके, नाउ कितने कंस्ट्रेंट्स है? 1 2 3 4 5, सबको एक वेरिएबल देते हैं, y1 y2 y3 y4 y5। ओके, is it okay? Yes. Now minimize should get converted to maximize, Maximize. will get converted to w is equal to, राइट साइड में देखो क्या है, 7 4 माइनस 10। ठीक है, Minus 10. 7y1 प्लस 4y2 Y2 माइनस 10 minus Minus y3 10 y3 प्लस 3y4 plus प्लस 2y5। ओके, Yes. बस खत्म। ठीक है, सब्जेक्ट टू, Subject two. सब्जेक्ट टू में देखते हैं। देखो कंस्ट्रेंट कितने थे? 5 बराबर। अब कंस्ट्रेंट 5 कितने हो जाएंगे? जितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? 3 3 वेरिएबल कितने हैं पहले? 3। 3 तो एक का x1 का एक कंस्टेंट बनेगा, x2 का एक कंस्टेंट बनेगा, x3 का एक कंस्टेंट बनेगा। सिंपल। तो वैल्यू देखते हैं, 3 6 माइनस 7 बराबर ना, तो 3 इंटू y1 प्लस 6 इंटू y2 इज एवरीवन देयर? Yes, minus 7 माइनस into 7 y3 इंटू y3 y3 प्लस y4 4 प्लस 4 इंटू, Wi-Fi. एक सेकेंड, ये थोड़ा इशू आता है, प्लस 4 इंटू y5। ओके, अब तुम बता Yes. दो, ये मैक्सिमाइज है तो तुमको पता है ये क्या रहना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। Less than Yes. equal to 3. लेस देन 3. इक्वल टू व्हाट? 3 लिख दो। 3. डन। अब नेक्स्ट कंडीशन Yes. लिखते हैं, क्या रहेगा? 5 इंटू y1 y1
plus y2 y2 plus plus 2y3 2y3 minus minus 2y4 plus 7y5 plus 7y5 less than equal to what? minus minus 2. Is there someone in the chat asking something? Okay, no issue. Okay, last thing you'll see. What is the last thing? 4 into y1 plus 3 into y2 plus 1 into y3, right? Sorry. yes Plus 5 5 into y4 minus 2 into Minus 2 y5 less than equal to what is the value of x3? 4. हो गया? Now y1, y2, y3, y4, y5 greater than equal to 0 0. Done. Okay? अब important सर y3 तक है ना? y5 तक है बेटा. वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं, वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट हो जाते हैं. सर यस. अब ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, कभी भी नवाज सर ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कभी भी ध्यान देना, आरएचएस पे कभी नेगेटिव नहीं होना. पता है सर ने बोले होंगे, मैंने भी बोला है, आरएचएस में कभी भी नेगेटिव नहीं होना. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? यस सर. ये RHS हमने में कभी आरएचएस नहीं होना. अगर आपको Yes. सुनो अच्छे से सुनो, ड्यूल के लिए ठीक है. अगर आपको इसको सॉल्व करना रहता, क्या करना रहता? सॉल्व करना करना रहता, तो इसको आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक यहाँ के नेगेटिव को पॉजिटिव ना बना दो. याद रखना. तो अगर आपके इसके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से. और ये लेस देन क्या हो जाएगा? सर पहले वाले क्वेश्चन में भी तो नेगेटिव है ना -10. राइट साइड में नहीं है. अरे ये ना, ये तो मैंने किया ताकि हाँ. ड्यूल बन जाए. ये तो जुगाड़ था ना. तो सर लेकिन माइनस तो था ना. अरे बेटा सॉल्व थोड़ी ना करूंगा माइनस के साथ, मैं तो प्लस के साथ ही सॉल्व करूंगा 10 वाले के साथ. और मैं ये मेथड पे क्या लगाऊंगा? बिग एम लगेगा ना इस पे. ये बिग एम से Yes, सॉल्व sir. होता कि नहीं? डायरेक्टली बिग एम से सॉल्व होता है या नहीं? ये सब लेस है, ग्रेटर है, एक लेस है, बिग एम Yes, से sir. सॉल्व हो जाता. मैंने जानबूझ के क्या किया, या माइनस डाला ताकि Yes. मेरे को ड्यूल बनाने में आसानी हो. तो चीजों को अलग अलग रखो. ड्यूल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मिनिमाइज में सब ग्रेटर देन रहना चाहिए, मैक्सिमाइज में सब लेस देन रहना चाहिए. इज एवरीवन देयर विद मी? Yes, sir. बट Yes, जब sir, yes, आपको sir. एलपीपी सॉल्व करना रहेगा ना, तो एलपीपी सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने से पहले ये माइनस को एलिमिनेट करना जरूरी है. ओके, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो Okay, sir. इशू. बट व्हेन यू वांट टू सॉल्व इट्स एलपीपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कन्वर्ट इट इनटू प्लस. And if you would not have done this thing here, you would not have been able to find the values properly. Okay? आप ड्यूल Yes. बना नहीं पाते थे इजीली, Yes, इसीलिए sir. मैंने वो चेंज किया. ओके? हाँ Okay, यस सर. मतलब सर एलपीपी सॉल्व करने के टाइम पे नेगेटिव नहीं रहना चाहिए. एलपीपी आरएचएस में सॉल्व डुअल करने करने के के टाइम टाइम पे थोड़ा आरएचएस एडजस्टमेंट कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट आरएचएस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट्स इट. पॉजिटिव. यस सर. There is a way to solve negative RHS also, but that is not there in your syllabus. जो मेथड आप यूज करते हो, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम और टू फेज, ये तीन मेथड यूज करते वक्त नहीं, ये तीन मेथड यूज करने के लिए अगर आपके सिलेबस में यही है, और ये तीन मेथड से यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका आरएचएस कभी भी नेगेटिव ना हो. ओके, yes सिंपल. ओके सर. Yep. Now, just give me a second. Okay, so I hope you understood this thing. Now we'll take some more questions. बहुत सारे वैरायटी है इसमें, एग्जाम में आते हैं. ये आते हैं एग्जाम में आते हैं. ड्यूल एलपीपीज भी सॉल्व करने बोलता है, वो भी कराना था, देखते हैं, होपफुली हो जाएगा. ध्यान देते हैं. अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये है तुम्हारे लिए. ट्राई करते हैं. अभी yes कर सकते हो ट्राई, 2 मिनट लगेगा तुमको. Yes, sir. ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो. कितने मार्क्स को आता है?
ये अगर सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने बोला है, मतलब प्राइमल को ड्यूअल में कन्वर्ट करो तो 5 मार्क को है। अगर बोलेगा कि इसका प्राइमल से ड्यूअल में कन्वर्ट करो और एलपीपी सॉल्व करो तो 20 मार्क को भी आता है। 2 पेपर में पूछा है, कन्वर्ट करके सॉल्व करने बोला है। तो वैसे एक सॉल्व कराओ ना। कराता हूं ना, टाइम है अभी, उसके वैरायटी तो देख लो पहले। ये जो चीजें हैं ना, दिस इज बिल्डिंग अप टू यू टू सम क्लाइमेक्स। एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जिसमें आप ड्यूअल थ्योरम यूज करोगे जो आपके सिलेबस में है। ओके देखो फिर मैं बता रहा, दिस ऑल लाइक पहले मुझे ना अपने आप को, मेरा वीडियो चालू है तो मैं पॉज करता हूँ क्योंकि सेइंग समथिंग ऑन रिकॉर्ड इज नॉट नाइस। ओके नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन सी, देखो कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल, गिवन इज मैक्सिमाइज। ओके नाउ सबसे पहले ड्यूअल बनाना है तो मैक्सिमाइज का हो जाएगा मिनिमाइज, सिंपल। ओके नेक्स्ट z का हो जाएगा w, सेम वे, कुछ भी मत देखो, सिर्फ मेरी बात सुनो। कितनी इक्वेशंस है? कितनी इक्वेशंस है? 2 तो एक दो को नाम सर, दे दो y1 y1, y2। दूसरे को नाम दे दो y2। अब ध्यान दो, राइट साइड में क्या है? 7, तो ये हो जाएगा 7y1, करेक्ट। ये क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3y2, सिंपल, डन। सब्जेक्ट टू, ध्यान देना कितने वेरिएबल्स है? x1 x2 x3। ये इक्वल टू को मत देखो, दिख रहा है ना ये इक्वल टू, हाँ या ना? इंपॉर्टेंट चीज। अब ध्यान दो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बताया था, जब मैक्सिमाइज रहे तो सब क्या रहना चाहिए? लेस देन, हाँ या ना? लेस देन इक्वल टू, करेक्ट। इज एवरीवन देयर? यस सर, इज एवरीवन देयर इन द क्लास? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस। नाउ लिसन, मैंने बोला था जब मैक्सिमाइज रहे तो सब लेस देन इक्वल टू रहे। इक्वल टू रहे तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट मेथड में बताता हूँ। एक्चुअल में इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसको एक्चुअल मेथड में लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कर नहीं रहे क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। मैं करके भी बताता हूँ, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो पक्का कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ना। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैक्सिमाइज है और ग्रेटर देन है तो कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ना, ऐसे नहीं चलेगा, करके ही आगे बढ़ना। ओके यस सर। बट अगर मैक्सिमाइज है और इक्वल टू है तो बिना कन्वर्ट किए भी काम होता। ओके इसके 2 Okay, मेथड है, मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं बट बिना कन्वर्ट किए 100% काम होता। तो एक सेकेंड मुझे ये डिलीट करने दे, फिर मैं बताऊंगा। इज एवरीवन देयर व्हाट आई एम सेइंग? एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? नाउ लिसन, नाउ जस्ट लिसन। यस सर, थैंक यू। Yes, sir. सबसे पहले 2 3, इसको वेरिएबल कौन सा है? 2 into y1, राइट। प्लस क्या रहेगा? 3 into y2। अब ध्यान दो, मिनिमाइज है या नहीं? प्लस 3 into y2, मिनिमाइज है या नहीं? नहीं तो यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डायरेक्ट डाल दो। वेरी नाइस। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्या है? 3, तो 3 into y1 3y1 minus Minus 2y2, माइनस है माइनस। minus minus 2y2 again greater than equal to 10, पटक दो greater than, that's greater not an than issue. equal to 10, Last thing, 2 into y1 y1 plus plus 4 4y2 into plus y3 4y2 y2 greater than greater than equal equal to 2. greater than equal to 2, Very nice. Now 2, पहले वेरिएबल कितने थे? 3। अब वेरिएबल कितने हो गए? y1 y2, 2 ही है ना? दो है हाँ। Very nice. y1 y2 तो y1 y2 should be greater than equal to 0 नहीं, 0, no, not greater than equal to. Now listen, this is the trick, this is the trick. जो वेरिएबल y1 दिख रहा है, y1 जो Yes, sir. वेरिएबल नॉर्मल कंस्ट्रेंट के साथ है, ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, वो परफेक्ट है। y1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। बट y2 जो रहेगा ना, y2 इसके साथ क्या था? असाइन क्या था? इक्वल टू है या नहीं? equal yes equal to असाइंड क्या 3, है वो इंपॉर्टेंट है। असाइंड क्या है? असाइंड इक्वल टू है या नहीं? equal to तो जब भी कोई भी इक्वेशन इक्वल टू के साथ असाइंड है तो उसका जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? y2, वो मेरा ड्यूअल में अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप हो जाएगा। कौन सा टाइप हो जाएगा? Unrestricted. अनरिस्ट्रिक्टेड, सिंपल। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. मतलब सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वेरी नाइस। वो मैं चेंज करके बताता हूँ, पहले चीज समझो।
चीज क्या थी Okay. कि अगर मैक्सिमाइज है तो लेस देन इक्वल टू ढूंढो, सब लेस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चलेगा, इतना याद रखना, इक्वल टू चल जाएगा। तो इक्वल टू है रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना काम वही तरीके से करते जाओ। कर दिया काम। उसके बाद जो भी इक्वेशन में क्या है इक्वल टू है, वो इक्वेशन के वेरिएबल को ड्यूल में अनरिस्ट्रिक्टेड बोलना। क्या बोलना? अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, इसका Unrestricted. मतलब मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं, इक्वल टू कंस्ट्रेंट। दिख रहा है ये इक्वल टू कंस्ट्रेंट है प्राइमल में। Yes, sir. तो प्राइमल में जब इक्वल टू कंस्ट्रेंट रहेगा तो ड्यूल में वो क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। कंस्ट्रेंट नहीं, क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। वेरिएबल। अब ध्यान दो, यहाँ पे आते हैं हम वापस से, यहाँ ध्यान देते हैं, एकदम सिंपल सी चीज। एक मिनट ध्यान दो, ये देखो कहाँ गया पेन, हाँ ये देखो, यहाँ 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 यहाँ, ये देखो इक्वल टू कंस्टेंट था या नहीं? कहीं पे भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, इसने इस साइड लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ड्यूल को प्राइमल बोलो, प्राइमल को डुअल बोलो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता ना। Yeah, अब yes, ये sir. देखो टाइप इक्वल टू कंस्टेंट था या नहीं? अपना इक्वल टू कंस्टेंट था या नहीं? यहाँ पे वेरिएबल कैसा हो जाएगा दूसरे साइड में? बोलो। Unrestricted. अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड, बराबर ना। ये यहाँ पे भी लिखा है देखो, टाइप इक्वल टू कंस्टेंट है या नहीं? है या नहीं? है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये unrestricted हमने variable. यही किया ना, पहला वाला पॉइंट देखो बस। अब पहला वाला पॉइंट दिख रहा, दूसरा भूल जाओ। 6 नंबर पॉइंट देखो, 6 Okay. नंबर इक्वल टू कंस्टेंट क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो जाएगा। सिंपल। Yes, sir. इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। नाउ यस सर। now just give me a second and we can take one more question, okay, then we will do that thing, okay। जो मैंने दूसरा मेथड बताया वो भी करेंगे 100%, but what we will do before doing it by a rigorous method, we'll take one more question of this type। कहाँ है? ये वाला लेते हैं, एकदम सिंपल रहेगा और काफी इजी तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है, बस ध्यान देना। Able to see the question? Is Yes, everyone sir. able to see? Now listen. Yes. Listen, just see the question. देखो, ये देखो, मिनिमाइज है या नहीं? मिनिमाइज, yes or no? Yes, sir. Yes. तो ग्रेटर Yes, sir. देन इक्वल टू चलेगा या नहीं? ये वाली इक्वेशन 40 ना? yes or no? चलेगा। यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन वाली नहीं चलेगी चलेगी। क्या? नहीं चलेगी। तो इसको चेंज नहीं करते हैं सर। अपन। कैसे चेंज करेंगे? माइनस Minus माइनस side. 2x1 माइनस greater than माइनस equal to -3. Minus Now 3. fine? Now is it fine? ये इक्वेशन Yes, sir. चलेगी कि नहीं? Yes. चल जाएगी, इक्वल टू चलती है, Yes, बताया था मैंने। चलेगी। अब देखो, Yes, इसको sir. नाम दे हाँ। दिया y1, इसको नाम दे दिया y2, इसको नाम दे दिया हमने y3। मैं करता हूँ, आप ध्यान दो। मिनिमाइज का हो जाएगा मैक्सिमाइज। क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। सिंपल। z का हो W. जाएगा w। अब ध्यान देते हैं, -3y1 plus 5y2 plus 2y3. Is it okay? Is it okay? यस सर। Yes, sir. Subject 2, please ध्यान दो। Am I making you bore? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, नो सर। बस बैक कर दो एक बार। क्या बोल रहे हो? बोलो ना। अरे नहीं, सर बोलो। लेक्चर कब तक है? अरे बाबा, बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? ज्यादा हो रहा है? सर बराबर ब्रेक चलेगा, देता हूँ, चलो। ब्रेक देता हूँ, ये सम के बाद ब्रेक देता हूँ। मत Just मत give me a मत नहीं सर, कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। पहला लिख दिया, अब देखते हैं। -2y1 सेम तरीके से, प्लस y2 माइनस y3। मैक्सिमाइज है या नहीं? तो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट? 1। सॉरी, Yes, 0 0, x1 है ही नहीं यहाँ। x1 कहाँ है इसमें? z में x1 है क्या? यस सर, नहीं है। नहीं है Very सर। nice. जीरो आएगा। नेक्स्ट x2 चीज देखते x3 हैं। -1 into y1
1 plus 2 into plus y2 2x2 y2 x2 कहाँ x2 y2 y2 plus plus y3 y3 plus less than y3 equal to 1 ओके वन अब x3 नहीं है पहली इक्वेशन में तो Yes. 0 माइनस into y1 नहीं आएगा वहाँ y1 पे। y1 क्या बोल रहे हैं हाँ y1 नहीं आएगा 0 into y1 plus 6 Plus into y2 y2 plus 2 into y3 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 less than equal to 3 simple 3 yes sir very nice हो गया ये is it okay yes sir now yes sir Yes, लिख sir. दिया नेक्स्ट अब देखो y1 ग्रेटर देन इक्वल टू था वैसे ही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू था वो भी रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y3 इक्वल टू टाइप था या नहीं Sir. y3 equal to तो the क्या हो जाएगा ये unrestricted variable Unrestricted variable. very nice simple simple done understood yes sir नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर वो इसको दूसरे मेथड से करते हैं भरोसा करिए करेंगे वो भी इजी है कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में तो काम हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं ट्राई करोगे कर सकते हो क्वेश्चन Yes, sir. देखो अच्छे Yes, से sir. पॉसिबल कितने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बनेंगे ड्यूअल में बता सकते हैं दो वेरी नाइस दो वेरी बनेंगे। नाइस तुमको देख के समझ गया मतलब पहली वाली इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा कि वैसी चलेगी पहली वाली चलेगी सर क्यों पहली वाली चलेगी चलेगा। मैक्सिमाइज है पहली वाली चेंज करना पड़ेगा सर चेंज करना पड़ेगा लेस देन इक्वल लेस टू में देन करना पड़ेगा वेरी नाइस कर लो जल्दी से कभी भी ना ये बेसिक चीजें करने का कभी भी थोड़ा सा भी ओवर स्मार्ट बने ना या ओवर कॉन्फिडेंट हुए गलत हो जाता है इसमें भरोसा करो तो इसमें हमेशा बेसिक चीजें बोलने का नहीं जो चीजें स्टेप्स होते हैं ना उसको हमेशा रखने का एकदम थॉरो प्रोफेशनल हो जाओगे ना तब चीजें कर सकते बट कभी भी माइनस वाला घपला होता इसीलिए कभी भी माइनस वाली चीज को डायरेक्ट नहीं देखने का कभी भी ग्रेटर है उसको लेस में कन्वर्ट करो फिर ही लिखो तभी तुमको आसान पड़ेगा करो तुम ट्राई Is everyone able to try? Yes. Yes, sir. Just see whether I have done the correct thing or not. Just see it once. सर हेलो हाँ बोलो ना सर इसमें 3 कंस्ट्रेंट और 3 वेरिएबल है तो इसको क्या कन्वर्ट हो करने गया? का कुछ फायदा हो रहा है हाँ ना फायदा क्या है पता है मतलब फायदा डुअल में कन्वर्ट करने कुछ फायदा नहीं है ये Yes. सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए कुछ फायदा नहीं एक्चुअल में फायदा क्या है पता है जब बहुत सारे Okay, मतलब कंस्ट्रेंट्स सर रहते हैं ना लार्ज नंबर ऑफ जब एक्चुअल में जब एप्लीकेशन क्या ज्यादा रहते है हैं तो उसको कन्वर्ट जब करने में काम हो जाता है ज्यादा देखो एकदम सिंपल सी चीज ये है कि जब बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट रहते हैं तभी ये मेथड यूज में आता है समझ रहे हो हाँ, इसके लिए पूछा सर इसीलिए पूछा हाँ ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है यस
तुम्हारे लिए बच्चे और कंफ्यूज होते हैं इसके वजह से, बोले ये कैसा Practice क्वेश्चन के है, लिए इसमें तो सब इक्वल है, क्या करने का, करने का। इसके और भी इंपॉर्टेंस है, आगे जाके आएंगे, देखते हैं अपन। सर आगे इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है ना, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली यार, जैसे एलपीपी सॉल्व करते हैं। यस सर। एलपीपी याद है, एलपीपी कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ सर। इसका एलपीपी सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा उसमें प्राइमल का आंसर कहाँ दिखेगा वो मैं बता दूंगा तुमको, क्योंकि इसमें जो आंसर दिखेंगे y1 y2 y3 के दिखेंगे ना। ये जो आंसर देगा वो किसका आंसर देगा, y1 y2 y3 w। तुमको आंसर कौन सा चाहिए रहता है, सर x1 x2 Primal x3 और z, x1 बराबर ना। तो वो आंसर भी इसमें दिख जाते हैं, 100% दिखते हैं, सब आंसर मिलते हैं इसमें। हो रहा है सॉल्व? सर हो गया सर। हो गया सर। वेरी नाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था ना, पहला क्वेश्चन जो इसमें लिया था, कहाँ गया, आई थिंक ये वाला था। इसको ना अब मेन मेथड से सॉल्व करते हैं, जो अप्रोच है इसका करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अप्रोच पता है, क्योंकि अगर अप्रोच नहीं पता रहेगा ना तो आगे जाके थोड़ी डिफिकल्टी आएगी आगे के प्रॉब्लम्स में। तो आपको मैं अप्रोच बता देता हूँ, काफी सिंपल अप्रोच है, कोई डरने की बात ही नहीं। देखते जाओ, बस सिर्फ अपना बेसिक मैथ्स जो है ना एंटीना ऑन रखना कि मैथ्स कैसे वर्क करता है। इफ यू नो दैट थिंग यू विल बी एबल टू डू इट। ध्यान देते हैं, जस्ट लिसन। देखो पहली इक्वेशन क्या है, लेस देन है, मैक्सिमाइज है ना, तो लेस देन इज एप्लीकेबल, राइट, नॉट एन इशू। दूसरी इक्वेशन को अच्छे से ध्यान देते हैं, ये इक्वेशन दिख रही है ना? यस सर। ध्यान देते 3x1 minus 2x2 plus 4x3 is equal to 3। अब अगर मुझे कोई भी एलपीपी को सॉल्व करना है तो मुझे इक्वल टू के साथ नहीं काम करना रहता, तो इक्वल टू को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। देखो कैसे, 3x1 minus 2x2, ये इक्वेशन को मैं दो में कैसे स्प्लिट करता हूं, बस ध्यान दो। एक बार मैं लिखता हूं, सपोज करो लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, या तो मैं लिख रहा हूं लेस देन इक्वल टू 3 और फिर मैं इसको लिख रहा हूं 3x1 minus 2x2 plus 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने यही एक इक्वेशन को दो में स्प्लिट कर दिया, समझ रहा है? एक बार लेस देन इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो लेस और ग्रेटर नलिफाई हो जाएगा, जो सिर्फ बचेगा वो क्या बचेगा, इक्वल टू बचेगा। ओके, क्योंकि सुनो ना, हेलो, इज एवरीवन देयर? देखो मैं बता रहा ये क्यों करा, तुमको अच्छे से पता है कि इक्वल टू ही होना, क्या होना, इक्वल टू ही होना, बराबर ना? यू आर वेरी श्योर दैट इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, तो यू आर कंसीडरिंग दैट इक्वल टू। Here also you are considering that equal to. Just for the sake to solve this question, for the converting you can say a primal into a dual, you are considering the constraints to make it happen with respect to maximization. How? You are considering one time it is less than, one time it is greater than, but when you are considering it to be less than, you are considering equal to also together. So this equation stands true. This is not like this is not standing true. This is standing the test of equal to, right or not? Yes sir. This equation is also standing the test of equal to. This equation also holds true whether I put less than or greater than. If I am putting equal to, it will always stand the test of equal to. Okay, it will not be like it will nullify the test of equal to. It will always stand the test for equal to. Okay, so now what I have done is I have changed one equation which was equal to into two main equations, right? Right? Very nice. Now what I'll do is फिर से एक बार सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैक्सिमाइज z is equal to, can anyone help me out with the question? यही है ना, 3 10 2,
3, 10, 2. राइट? सब्जेक्ट टू क्या है? पहली कंडीशन देखिए क्या है? 2x1 2, 3, 2, 2, 3, 2, 7, 2, 3, 2, 7 हो जाएगा। 2, 3, 2, 7 इज इट राइट? अब दूसरी तो यहाँ मुझे दिख रही है। अब ध्यान देते हैं, एक कंडीशन क्या है? 3x1 माइनस 2x2 प्लस है ना 4x3 क्या लिखा था? लेस देन इक्वल टू 3, राइट और नॉट? राइट सर। अब ये कंडीशन देखो, ये ग्रेटर देन है। क्या है कंडीशन? ग्रेटर देन। यस और नो? यस सर। अब जब मैक्सिमाइज रहता है तो ग्रेटर देन चाहिए रहता है कि लेस देन? लेस देन। लेस देन। तो ये इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते ना? तो वही करेंगे। इक्वेशन वही है, सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं? माइनस 3x1, यहां मत देखो, इसको देखो। माइनस 3x1 प्लस 2x2, इसको भी देख सकते चलेगा। माइनस 4x3 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। इज इट ओके नाउ? ओके सर। नाउ कैन वी प्रोसीड नाउ? इज इट ओके? वेरिएबल्स क्या हो Okay, गए? sir. x1, x2, x3 greater than equal to 0, right? राइट सर। Very nice. Now we will do something more than this. ध्यान देते हैं. This is my y1, this is my y2, this is my y3. अब ध्यान देते हैं. हाँ, ध्यान देते हैं. अब जब y1, y2, y3 लिखा तो z कैसे लिखते थे? वो लिखते हैं मैक्सिमाइज का क्या हो जाएगा? मिनिमाइज w इज इक्वल टू क्या रहेगा? 7y1 बोलो प्लस 3y2 माइनस 3y3. यस और नो? यस सर। इज एवरीवन देयर विथ मी? यस सर। इतना चिल्ला कौन रहा है? आराम से. इज एवरीवन देयर इन द लेक्चर? You can do one Yes, thing. sir. Just give me a Yes. confirmation on Yes, the sir. chat. एक बार chat पे confirmation दे दो please. Those who are not able to speak. Yes, Okay. Okay. Thank you. Now, thank you. You can wait. No issue. ये लिख दिया हमने मिनिमाइज. अब देखो क्या लिखेंगे. मिनिमाइज लिखने के बाद हमको सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखनी है, तो मैं सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखता हूँ. सब्जेक्ट टू कंडीशन में पहले क्या आएगा? 2y1 माइनस प्लस 3. मैं नीचे लिख दूं, बेटर रहेगा. दिख रहा है ना तुम्हें? नहीं, वो दिखेगा नहीं ऊपर की कंडीशन. हाँ सर. नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे नहीं दिख रहा है. तुम ये याद रखो, 3, 10, 2 याद रखोगे? यस सर। ठीक है, फिर मैं नीचे लिखता हूँ. ओके, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? क्या रहेगी? 2y1 करेक्ट प्लस 3y2 माइनस 3y2. एम आई राइट? नो सर। पहला नंबर क्या था? 3 मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन रहेगा या नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर क्या रहेगा? कितना था ये? माइनस 3y3 आएगा. 3 ओके सो सॉरी. माइनस 3y3. यहाँ पे क्या था? RHS 3 3. अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं. दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी? 3y1 माइनस 2y2 प्लस y3 2y3 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू. 10. मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10. 10 है. वेरी नाइस. लास्ट इक्वेशन 10 सर. 2y1 2y1 4y2 प्लस 4y2 लास्ट माइनस 4y3 माइनस 4y3 ग्रेटर देन इक्वल टू. मिनिमाइज है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था? देन इक्वल
टू है सर। 2 सर। टू, Two. वेरी 2 नाइस। सर। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके, इतना लिख दिया। और हमको एक चीज और पता है, y1 y2 y3 will be greater than equal to 0. Okay, okay. ओके sir. सर। Now listen, very important thing. Just look at what I am doing now. 7y1 plus, मैं ये दोनों में 3 कॉमन निकाल दिया। क्या कॉमन निकाल दिया? 3। क्या बचा? y2 minus y3. Is it okay? 3 into y2 minus y3. Okay. Now Yes, look sir. at this equation. 2y1 plus, फिर से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया। क्या कॉमन निकाल दिया? 3। Plus क्या बचा? 3 into y2 minus y3. y2 3 minus into y2 y3 minus y3. greater than equal to 3, right? फिर ये इक्वेशन देखते हैं। इसमें भी 3. मैं 3y1 वैसे ही रख रहा हूँ। y2 और y3 दिख रहा है? y2 और y3 मैंने -2 कॉमन नहीं, निकाला। sir. इंपॉर्टेंट है, हाँ ना? Yes sir. Is it right? Yes sir, बराबर है। -2 into y2 minus y3. -2 कॉमन निकाला। 2 क्या बचा? into y2 minus y3. y2 minus y3 greater y2 minus than y3. equal to 10. Okay? Now लास्ट कंडीशन भी देखते हैं। 10 बराबर है ना? 2y1 2y1 निकाल लिया प्लस plus 4 4 into y2 plus 4 minus into y2 minus y3 greater than equal to 2. अब less than 2. ध्यान दो। लास्ट टाइम जब हमने किया था ना, याद है एक वेरिएबल ग्रेटर था और जो इक्वल टू वाली कंडीशन थी वो अनरिस्ट्रिक्टेड थी या नहीं? Yes, sir. कौन है यार? Yes sir. जिसके घर से एक आवाज आ रही है म्यूट करो। हाँ देखो, y1 y2 y3, y1 ग्रेटर देन था और एक वेरिएबल इक्वल टू वाला अनरिस्ट्रिक्टेड था। अब अच्छे से ध्यान देना, y2 माइनस y3 पे ध्यान देना। देखो y2 ग्रेटर देन 0 है या नहीं? y3 ग्रेटर देन 0 है या नहीं? या तो 0 है या तो ग्रेटर देन 0 है। तो सपोज करो दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0 कितना रहेगा? 0 माइनस 0 कितना रहेगा? 0 सर। वेरी नाइस। नाउ अब मैं बोलता हूँ, सपोज करो, सुनो, y2 है 2 और y3 है 1। प्लीज ध्यान दो, y2 कितना है? 2, y3 है 1। 2 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। दोनों वेरिएबल अभी भी ग्रेटर देन 0 है या नहीं? पहली कंडीशन मैंने क्या रखा? y2 क्या रखा? 0, y3 क्या रखा? 0। और मैंने चेक किया 0 माइनस 0। फिर मैंने y2 को रखा 2, y1 को रखा 1। 2 माइनस 1 क्या? 1। यस और नो? दोनों वेरिएबल अभी भी ग्रेटर देन 0 है। अब एक और कंडीशन रखते हैं, एक लास्ट। प्लीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। y2 रखा मैंने 1 और y3 रखा मैंने 2। प्लीज ध्यान देना, y2 क्या रखा? 1, y3 क्या रखा? 2। मेरे यहाँ से नहीं है, कोई और है। -1 आएगा सर। 1 minus 2. Please ध्यान दो. Is everyone there with me? The one who is making noise, please mute Yes, yourself. The one who is making noise, please mute yourself. Thank you. Now देखो, अभी भी देखो, पहले में कंडीशन क्या थी? दोनों 0। दूसरे में कंडीशन क्या थी? दोनों ग्रेटर देन 0। तीसरे में कंडीशन क्या थी? फिर से ग्रेटर देन 0। बट 1 minus 2 क्या रहेगा? -1। Yes or no? नेगेटिव आएगा सर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका कॉम्बिनेशन अनरिस्ट्रिक्टेड है या नहीं? यस देखो सर। ना, y2 पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है इसका? अनरिस्ट्रिक्टेड। कभी 0 आ सकता, कभी प्लस आ सकता, कभी माइनस आ सकता, बट दोनों वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है। यस और नो? यस सर। यस और नो? तो इसको नया वेरिएबल दे देंगे y4। समझ रहे हैं? तो अब देखो कंडीशन कैसे चेंज हो गई। सब्जेक्ट टू कंडीशन देखो क्या हो जाएगी। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या हो जाएगी? 2y1 प्लस 3y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहली कंडीशन। ओके ओके सर। 3y1 माइनस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और तीसरी कंडीशन क्या बताया? y4 होएगा ना सर? -2 y4 सो सॉरी y4। और लास्ट कंडीशन क्या कुछ भी बताया? देख सकते हैं ना। हाँ, मैंने नाम दे दिया है। बुक में y4 y2 डैश y2 डबल डैश देके y2 बोलता है। y2 डबल डैश
मैं नहीं लिखता, वो मुझे नहीं पसंद। 2y1 प्लस 4y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। z को भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? z को क्या लिखेंगे? देखो ना z कहाँ है, इसकी जगह क्या रहेगा? 7y1 plus 3y4। 7y1 plus 3y4, तो z आ गया, मिनिमाइज था मैक्सिमाइज? मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7y1 plus 3y4। अब क्या लिखेंगे? y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y4 क्या रहेगा? Unrestricted। तो are we getting to the same point? Yes. Very nice. Have you understood now? Yes. Now एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दो। देखो इक्वल टू था, हाँ या ना? क्वेश्चन क्या था, गौर करो, मैक्सिमाइज। क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमाइज। तो इक्वल टू जो था उसको मैंने दो में तोड़ा, लेस देन और ग्रेटर देन। यस और नो? यस और नो? Yes sir. हमेशा याद रखना, जब भी आप कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हो, जो सेकंड मेथड है, कभी भी जब मैक्सिमाइज रहेगा ना बेटा, लेस देन वाली कंडीशन पहले लिखना, ग्रेटर देन वाली बाद में लिखना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा है? क्या बोले देखो, सर? जब भी मैक्सिमाइज रहेगा और इक्वल टू रहेगा, क्या रहेगा? इक्वल टू, तो दो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करेंगे हम, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन। यस और नो? यस सर, बराबर। हमेशा लेस को पहले लिखना और ग्रेटर को बाद में लिखना जब भी मैक्सिमाइज रहेगा। जब इक्वल टू को तुम इक्वल टू के लिए सिर्फ इक्वल टू जहां पे भी है, जब भी उसकी कंडीशन लिख रहे हो तो पहले नंबर पे लेस वाली लिखना, दूसरे पे ग्रेटर वाली लिख के उसको लेस में कन्वर्ट कर देना। समझ रहा है? यस सर, समझा। ध्यान दो, अगर मिनिमाइज है, क्या है? मिनिमाइज, और कंडीशन है इक्वल टू, तो एक आएगी ग्रेटर देन, दूसरी आएगी लेस देन। तो पहले ग्रेटर वाली लिखना, फिर लेस वाली लिखना। नहीं सॉरी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ लेस लिखेंगे ना? सॉरी, नहीं, कैसे सही है? मिनिमाइज में क्या चाहिए रहता है अपने को? पहले, हाँ सही बोल रहा हूँ, पहले ग्रेटर देन, फिर लेस देन। तो ग्रेटर को पहले लिखना, लेस को बाद में लिख के ग्रेटर में कन्वर्ट करना। अगर तुमने इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप y2 माइनस y3 कॉमन निकालते ना, कुछ कॉमन निकालते, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 100% प्रॉब्लम होगा। उसको क्लियर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी के लिए इस लेवल पे मत करो, सिंपल रखो। ओके, इज एवरीवन ओके विद व्हाट आई एम सेइंग? मिनिमाइज रहेगा तो पहले क्या लिखोगे? Yes, sir. इक्वल टू में। सर मतलब Maximum. ये डुअल से प्राइमल से डुअल पे कन्वर्ट करने के बाद ना, जब एलपीपी में सॉल्व करेंगे तभी ना? हाँ, एलपीपी में नहीं, नॉर्मल में। जब इक्वल टू को करेगा लिखेंगे तब। लेस और ग्रेटर, प्राइमल में इक्वल टू दिया है तो उसको लेस ग्रेट में लिखता है कि नहीं? लेस और ग्रेटर। अच्छा, हाँ, जब प्राइमल। नंदिता, म्यूट योरसेल्फ। यस सर। Sir, I'm muted only. ओके सॉरी, बोलती है बराबर। ओके, मैक्सिमाइज रहेगा तो पहले लेस लिखना, फिर ग्रेटर लिखना और लेस में कन्वर्ट करना। मिनिमाइज रहेगा तो पहले ग्रेटर लिखना, फिर लेस लिखना और लेस को ग्रेटर में कन्वर्ट करना। ओके, ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो एग्जाम में हालत बुरी हो जाती है। ये सब क्विज में क्वेश्चन आते हैं, यही सब आते हैं मेरी तरफ से, इसीलिए क्विज में किसी के मार्क्स नहीं आते। ओके, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, याद है नंबर? 6 सर। 7th नहीं देखा ना अभी तक? नहीं सर, देखा ना? बस 7th और 8 देखते हैं, फिर देखते हैं आगे करना है कि नहीं करना। ठीक है, एक लास्ट टाइप, बस एक लास्ट टाइप ये आ गया तो तुमको डियोल में प्राइमल को डुअल लिखने आ जाएगा, इतना श्योर हूं। ये लिखे थे आई थिंक, किए सर मिक्स हो जाएगा सब। अरे नहीं होगा सर, बहुत टाइप देख लिए। अच्छा ठीक है, काम करो, मेरी बात समझो, 10 मिनट का चिल करो। एक टाइप बचा, एक वैरायटी यार, उसके बाद जो रहेगा ना अपन नेक्स्ट लेक्चर में सर ले लो फिर। सुनो, हाँ, ले लो सर, फिर। खत्म कर ले लो सर। सुनो तो, खत्म कर दो लेक्चर। अरे सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो नेक्स्ट लेक्चर में डियोल एलपीपी और उसके थ्योरम करेंगे तो एलपीपी फिनिश ऑफ हो जाएगा।
हम्म तो एक वैरायटी बचा है, बस उसको ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 7 तक किया है हमने, 7 किया है यार, किया है ना ये? या 2 अनरिस्ट्रिक्टेड आएंगे उसमें। हाँ, 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हो गया, एक्चुअल में जगह नहीं थी वहाँ, तो भी हो जाएगा ठीक है। ये देखते हैं, प्लीज ध्यान देना, ये लास्ट है वैरायटी, बस खत्म। ध्यान देना, जगह उनको क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। अब ध्यान दो, दिस इज द लास्ट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, मिनिमाइज मींस, यू नो मिनिमाइज मतलब ग्रेटर रहना चाहिए, करेक्ट? ग्रेटर देन। तो मैं लिख देता हूँ, Yes. देखो मिनिमाइज, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मिनिमाइज z is equal to 3x1 minus 2x2 plus x3 subject to क्या रहेगा? मिनिमाइज है तो ग्रेटर रहना चाहिए या नहीं? यस शुड सर। वी कन्वर्ट दिस? यस, कन्वर्ट कर दो। तो हाउ टू कन्वर्ट? minus 2x1 minus Plus 3x2 plus plus 3x2, प्लस आएगा हाँ, minus x3 greater than equal to minus 5. -1। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, पहले से ग्रेटर है, डोंट चेंज एनीथिंग, 4x1 minus 2x2 greater than equal to 9, राइट? यस। लास्ट इक्वेशन करूँ क्या दो पार्ट में कन्वर्ट, कि तुमको समझ गया? हाँ सर, कन्वर्ट कर दो सर। करूँ कन्वर्ट? समझ गए। करो ना। ठीक है, कर देते, चलो। -8x1 प्लस 4x2, मिनिमाइज है तो पहले कौन सा लिखना चाहिए, ग्रेटर या लेस? ग्रेटर। वेरी नाइस। तो 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पहले लिखा, यस और नो? फिर उसके बाद लिखा माइनस का हो जाएगा +8x1 -4x2। आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। यस सर, यस, डायरेक्ट स्टेप। -3x3, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा या नहीं? हाँ, डन, उसको वेरी नाइस। अब देखो, इतना हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक मिनट, ध्यान देते हैं। तो देखो कितनी इक्वेशंस है, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। तो दिस इज y1, दिस इज y2, सर 4 हो गई। हाँ बोलो। सर अभी आप जो बोल रहे थे ना कि पहले लेस देन लिखने का, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, हाँ, इससे पहले बता रहे थे ना कि मिनिमाइज में, तो वो सर एक बार इसमें बताओ ना, वो समझा देखो नहीं ना, सही अभी से तो क्या किया। बोल। ये क्या है बेटा, इक्वल टू है या नहीं? इक्वल टू है ना? यस सर, इक्वल टू तो है। इसके दो पार्ट बनेंगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा, एक लेस देन इक्वल टू बनेगा। तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का दिख रहा है? यस सर। मिनिमाइज में पहले क्या लिखने का, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल ये टू, बता रहे थे आप। हाँ, और फिर लेस को ग्रेटर में कन्वर्ट करना है, बट बाद में लेस वाला लिखना। ओके, अंडरस्टूड? ओके सर। आपका नाम क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछते ये हो। कौन है ये? कौन है? कौन? सोहेल सर। अच्छा, सोहेल हो आप। ओके, अच्छी बात है, सोहेल। माशाल्लाह। हाँ, मैं पहचान लिया। चलो, अब ध्यान दो, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा करो, अच्छी बात है। y1 y2 y3 y4, ओके यस सर। ओके सर। नाउ, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का है। ये देखो, x1 दिख रहा है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x3 देखो क्या है, x3 क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड। यहाँ वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है पहले से, ठीक है, उसको भी कंसिडर कर लेंगे, वो टेंशन मत लो। वही बताने के लिए लिया था मैंने, इसीलिए मैं ये टाइप नहीं बताना चाहता था, पर तुमने बोला तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये बाद में देखते हैं x3 को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, टेंशन नहीं। ओके, यस और नो? यस सर। यस नाउ सर। लिसन, मिनिमाइज का क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, z का क्या हो जाएगा, w। अब देखते हैं, -5 प्लस 9 plus वेरी नाइस। नेक्स्ट, plus 8 y3 वेरी minus नाइस। 8 y4 y4 subject to, correct? The one who is having lots of background disturbance, please mute yourself, please. Next, क्या करना है, subject to -2 y1 minus 2 y1 plus 4
4y2 y2 minus 8y3 minus 8y3 8y3 plus plus 8y4 y4 हाँ equal to मैक्सिमाइज 3 है तो क्या रहना चाहिए less लेस than देन इक्वल टू करेक्ट ना less than equal to लेस देन इक्वल less टू than और equal to 3 3 लेस देन इक्वल टू 3 ठीक है फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है एक काम 3y1 करते हैं minus 3 अपने को तो 3y1 पता है एक सेकेंड लेस देन इक्वल टू आएगा वो तो पता है वो बाद में डालते हैं रीजन है मैं बताता हूँ ठीक है अपने को पता है मैक्सिमाइज है तो लेस रहेगा करेक्ट है तो वो बाद में देखते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या रहेगा 3y1 वेरी minus नाइस 2y2 minus 2y2 minus माइनस 2y2 2y2 एक सेकेंड साथ में चलते हैं प्लस 4y3 माइनस minus 4y4 4y4 लास्ट में क्या रहेगा minus माइनस 2 minus 2 करेक्ट अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा yes नेक्स्ट x3 minus x3 ना 1y1 minus हाँ minus y1 minus y1 minus y1 the one who is having lot Plus of 0 background y2 noise please mute yourself plus 0 y2 plus plus 3 3y3 y3 minus 3 y4 साथ में क्या रहेगा One. माइनस 1 सॉरी सॉरी Sir, one. सॉरी 1 1 रहेगा ओके अब ये पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं y3 y4 कॉमन निकलेगा या नहीं 8 कॉमन निकलेगा तो इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ प्लीज ध्यान दो यहाँ लिख रहा हूँ नया कलर यूज कर लेता हूँ इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग एवरीवन Yes, sir. yes सर कलर कौन सा लूं ये लेता हूँ मस्त है ध्यान देते हैं क्या रहेगा -2 बहुत बड़ा हो गया है जगह ही नहीं बचेगी रुको ना एक मिनट जस्ट नया कलर लेने दो ताकि चीजें थोड़ी सी आसान रहे ये कलर भी चलेगा ये भगवा रंग है पर चला लेगा -2y1 यस और नो प्लस 4y2 क्या कॉमन निकाला -8 कॉमन निकाला ना yes sir क्या बचा Yes, y3 sir. माइनस y4 को नया वेरिएबल दे दो y3 minus y5 y4 y3 minus y4 y5 लिख दिया हाँ सर और 3 वैसे ही चलेगा। रखते हैं यहाँ पे क्या आएगा वो चलेगा। बाद में देखते नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्या रहेगा 3y1 3y1 -2y2 yes or no plus 4 Plus 4, y3 minus y4 one. again y5 Wi-Fi. -2 वैसे ही रहने दो ओके लास्ट वन -y1 plus 0 y2 हटा दो plus 3 3 y3 minus Wi-Fi. y4 again y5 1 लिख दो लिख दिया आया ना यस और Yes, नो sir. जब इसको लिखते तो क्या Yes. लिखते yes, y1 sir. y2 y3 y4 all greater than equal to 0 करेक्ट Yes. यस और नो और जब ये लिखेंगे Yes. तो क्या लिखेंगे y1 y2 greater than equal to 0 y3 y4 जुगाड़ वाली चीज है या नहीं तो उससे क्या बना वाईफाई क्या हो जाएगा अब unrestricted वेरी नाइस अनरिस्ट्रिक्टेड वेरी गुड अनरिस्ट्रिक्टेड ना तो जब इसको चेंज Yes, करेंगे sir. तो देखो ये क्या हो जाएगा -5y1 प्लस 9y2 प्लस 8y5 Wi-Fi. सिंपल yes sir अब Yes, ध्यान sir. दो मेन चीज पे आओ मेन चीज ये चीज हमने नहीं देखी थी अभी तक क्या है ये X3 unrestricted. x3 अनरिस्ट्रिक्टेड तो कौन सा वेरिएबल है y1 y2 y5 में से कौन सा वेरिएबल है जो x3 से बना मुझे बताओ y1 y2 बराबर है y1 y2 दिख रहा है तुमको क्या बोल रहा हूँ x3 दिख रहा है x3 x3 यहाँ है Yes, sir. आया ना और वाईफाई ना yes ये किससे बना है x3 से क्या बना है याद करो x3 से कौन सी इक्वेशन बनी है Third वाली. थर्ड वाली Third तो जो सुनो ना सुनो x3 से कौन सी इक्वेशन बनी है थर्ड वाली एग्रीड Yes, Equal sir. to sign. तो जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसकी इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगी Yes, sir. समझ जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है कौन सा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है गए. X3. x3 तो इससे इक्वेशन X3. कौन सी बनी थी थर्ड इक्वेशन करेक्ट तो जो इक्वेशन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वल टू और मैक्सिमाइज की कंडीशन क्या रहती थी जब मैक्सिमाइज है तो Less than equal to. लेस देन डन Oh. समझा
समझ गया सर। फिर से लास्ट एक बार फिर से ये छोटा सा काम देखते हैं बिफोर एंडिंग द लेक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। अब देखो लास्ट कंडीशन देखो यहां लिखा है, वेरिएबल जब क्या रहेगा, अभी क्या ना हमने Restricted. तो कांस्टेंट जब वेरिएबल वेरिएबल जब रहेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू। इक्वल Equal to मतलब type. जो भी वेरिएबल है x3 नंबर में था ना, यस तो जो भी वेरिएबल Yes, sir. अनरिस्ट्रिक्टेड है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल टू में आ इक्वल टू जाएगी। अंडरस्टूड, इक्वल टू टाइप। अंडरस्टूड। यस Yes, Yes, sir. sir. Now listen before ending, listen, we need not end it here. What we will do, just listen what I am saying, very important thing before we complete. Listen, unrestricted जो था ना, x3 unrestricted था, तो जब unrestricted रहा तो उसको मेन मेथड से कैसे करेंगे वो बताता हूँ। x3 will be equal to x4 minus x5 लिखो, समझ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस और सर। x4 will be greater than equal to 0, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, और x5 will also be greater than equal to 0, and in this case also x3 can be positive, negative और zero, समझ रहा है? इस तरीके से हाँ, करोगे तो आप प्राइमल मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने अभी डायरेक्ट कर दिया, क्या डायरेक्ट किया कि जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसकी इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, बराबर? यस सर, यस सर। उस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ओके, 100% कर समझ सकते गया हैं। सर। एक और चीज, ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन, इसमें आरएचएस में क्या है, -2 माइनस। तो अगर इसका एलपीपी सॉल्व करना रहेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरीवन ओके? यस सर। नाउ Yes, sir. we are done with lecture. Anyone is having any doubt?